A very good afternoon to one and all present here. Since we are heading into Diwali, let us start today's session with a Diwali greeting. आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। दीप जलाओ खुशी मनाओ आई दिवाली रे। दीप जलाओ खुशी मनाओ आई दिवाली रे। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। Choose to sing along with both. आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। खूब चले फुलझड़ी पटाखे आई दिवाली रे। खूब चले फुलझड़ी पटाखे आई दिवाली रे। सबको बांटो खूब मिठाई आई दिवाली रे। सबको बांटो खूब मिठाई आई दिवाली रे। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। दीप जलाओ खुशी मनाओ आई दिवाली रे। दीप जलाओ खुशी मनाओ आई दिवाली रे। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। आई दिवाली आई दिवाली आई दिवाली रे। Thank you very much for joining me in the Diwali celebration. And now we shall quickly begin with the regular session. Hope you enjoyed this short change. Hope you enjoyed this short change that we've had from a normal regular prayer to a Diwali celebration. Yes, I can see a lot of people who've enjoyed the Diwali greeting. And we are close to 1700 people and yet counting. So let me quickly share the regular screen. And yes, while we start, so this is our topic for today, enhancing student engagement in the classroom. And thank you very much, everyone. Those wishes really mean a lot. And we shall begin with today's session. This is Ms. Khyati Dwarkadas, the facilitator for today, a master trainer and resource person for CBSE. So let's continue. Now, what is today's session all about when we talk about enhancing student engagement in the classroom? We are going to be talking about who is a learner, what are the characteristics of a 21st century learner, what is learner engagement, why is learner engagement necessary,
What are the stumbling blocks to learner engagement? Why do we have to do something to make learners more engaged? And what are some ways in which we could engage the learner? So all of you are brilliant educators, regularly attending all trainings. So obviously you know so many strategies to engage the learners. So now we shall move into the main session. All right. And that's going to start now. It's not letting me shut one window. When we talk about a learner and a student, there is a big difference between a learner and a student. See, we have to keep in mind that we are all learners. We are not students. But a student is always in a classroom. And in a classroom, a student is going to be, directed by the teacher, even if self-motivated. There is only one purpose a student sits in the class for, which is for learning and following instructions. And of course, through various activities, their ultimate goal is to clear the CBSE examinations. However, as learners, we are lifelong learners. We don't have any goal to clear an examination or something. We have our own personal goals that through a continuous professional development, we will upskill ourselves. So we support our own learning. We work at our own pace, which is absolutely self-defined, and it's mastery oriented. And we design our own learning experiences. So learners always are more important than students, because students at this point in time that we are comparing are, you can see, as you can see over here on your screens, the teacher designs activities for them. They just do those activities. So teacher may design even experiential learning activities, but they are teacher designed. They are not self-designed. But a learner may choose to self-design activities as well. So the learner becomes a risk taker, a reflective thinker, more knowledgeable, and starts inquiry, is open-minded, caring, etc. Okay. So why do we need to engage the learner? Students who are engaged are 2.5 times more likely to report gaining excellent grades. And they do very well in school compared to their disengaged peers. तो ये तो वही बात हो गई, जो बच्चे सोते रहते हैं क्लास में, कुछ करते नहीं हैं, उनसे ज्यादा अच्छे तो 2.5 गुना ज्यादा अच्छे तो ये बच्चे हैं जो engaged होते हैं. Engaged students are 4.5 times more likely to be hopeful about the future than those who are disengaged. And student engagement has a significant positive impact on student growth. Schools with high student engagement are better preparing students for future compared to schools with low student engagement. So why do we then need to engage the learner? So we already know, like what we have learned in pedagogical strategies, that you have to bring about a behavioral, emotional, and cognitive change within the students. You have to engage the behavior, the emotion, and the cognitive skills. All the constructivist theorists of education, जिसे हम रचनात्मक एजुकेशनिस्ट कहते हैं, वाइगॉट्स्की है, पियाजे है, कोलबर्ग है, जॉन ड्यूई है, गार्डनर है, हावर्ड गार्डनर,
बेंजामिन ब्लूम है। ये सभी हमें अलग अलग थ्योरीज से बच्चे की, लर्नर की बिहेवियरल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बातें करते हैं। So beyond academic benefits, there are advantages related to increased attendance and improvement in behavior when the learner is engaged. Now, when we look at the characteristics of a 21st century learner, we know that this kind of a learner is adaptive, resilient, global citizen, जो हम even G20 में देख चुके हैं, वसुधैव कुटुंबकम इस नारे को सार्थक करने वाला ग्लोबल सिटीजन, जिनसे ग्लोबल इश्यूज की अवेयरनेस हो, एनवायरमेंटली कॉन्शियस, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी पता हो, सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर जो कि क्यूरियस हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो और इंडिपेंडेंटली अपने प्रोजेक्ट्स कर पाए, एआई लिटरेट हो, आजकल तो इसके बिना हम जी नहीं पाते, तो बेसिक्स ऑफ एआई, एथिकल इम्प्लीकेशन, सोशल इम्पैक्ट जानता हो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकर हो, एनालिसिस, सिंथेसिस, बायसेस को आइडेंटिफाई करे, क्वेश्चन करे, अजम्पशंस को भी क्वेश्चन करे, और जो जजमेंट दे वो रीजनिंग के साथ दे, अपने कथन को कोई अच्छा रीजन देकर सपोर्ट करे। तो जिस 21st सेंचुरी एंगेज्ड लर्नर की हम बात कर रहे हैं, they thrive in control challenges, they multitask, they maintain transparency, they have freedom, they're consumers and creators, multiculturally aware, they work in collaboration, they are aware of interdisciplinary connections, and they follow a trial and error theory. अब आपको याद हो तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, ईएल थॉर्नडाइक ने एमसीक्यू के समय। यस, किसी ने मुझे बताया कि ये कोलैबोरेटिव होते हैं, तो बिल्कुल जी हाँ होते हैं, कोलैबोरेटिव भी होते हैं। लर्नर एंगेजमेंट कैसे होता है? कॉग्निटिव, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल, फिजिकल एंड कल्चरल। तो हम 6 प्रकार की लर्नर एंगेजमेंट की बातें कर रहे हैं। कॉग्निटिव मतलब दिमाग से, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी से। जब हम इमोशन की बात करें तो बच्चे की भावनाओं को समझने की बातें हैं, फीलिंग्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इमोशंस, बिहेवियर, टास्क एंगेजमेंट एंड कंप्लीशन। सोशल बातें जब हम करते हैं लर्नर एंगेजमेंट के लिए, तो सोशल इंटरैक्शन एंड कोलैबोरेशन, बच्चा एक दूसरे से, लर्नर जिसकी हम बात करते हैं, वो एक दूसरे से कैसे एंगेज रहता है, कैसे इंटरैक्ट करता है। हम जब फिजिकल लर्नर एंगेजमेंट की बातें करते हैं तो काइनेटिक मूवमेंट, एक्सरसाइज, काइनेटिक मतलब कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जिन्हें हम नृत्य के माध्यम से ही पढ़ा पाते हैं, और कुछ लर्नर हमारे ऐसे होते हैं जो केवल सुनते हैं। तो ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, विजुअल लर्नर्स होते हैं, ऑडियो विजुअल लर्नर्स होते हैं, और एक ये जो काइनेस्थेटिक होते हैं, इनको मूवमेंट से ज्यादा ज्ञान मिलता है। और कल्चरल, सो culture in the organization, learning and development culture in an organization brings in high levels and high degrees of learner engagement. तो ऐसे लर्नर्स होते हैं, व्हाई डू वी नीड टू एंगेज लर्नर्स? यदि हम उनको एंगेज ना करें तो हमारी सारी कक्षाएं ऐसी लगना शुरू कर देंगी, और हम तो इतने अच्छे अच्छे अध्यापक हैं कि हमारी किसी भी कक्षा में ऐसे बच्चे नहीं होते। ये देखिए, when you start promoting learner engagement, तो हमारे बच्चों के, लर्नर्स के भी चेहरे पर एक खुशी होती है, और हम भी अपने आप सोचना शुरू करते हैं
कि मेरे विद्यार्थियों को, मेरे लर्नर्स को कितनी नींद आई होगी, क्या कोई ऐसा पारिवारिक मैटर है जिसकी वजह से ये बच्चा मेरी कक्षा में सो रहा है, क्या मैंने कोई ऐसा पढ़ा दिया जो बच्चे को समझ में ना आए, ये क्या हुआ, मेरी गलती कहाँ हो गई, ये टीचर रिफ्लेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगेजमेंट इज द ड्यूरेशन, relativity, selection, response to different stimuli, passive attention, आसपास की कक्षाओं से आवाज आ रही है, शोर मच रहा है, तो हमारे बच्चे भी डिसएंगेज होकर वहां क्या हो रहा है देखने चले जाएंगे। Illusion of competence, greater knowledge and competency in subject area or skill, मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान है तो मुझे आपके ज्ञान से कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसे भी इल्यूजन है, कोई ये सत्य घटना नहीं है, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। यदि हमारी क्लास लंबी चल जाए तो लर्नर्स डिसएंगेज होने की संभावना ज्यादा रखते हैं। कभी कभार हम किसी को कुछ पूछते ही नहीं, हम ही बोलते जाते हैं, लर्नर को हम देखते भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम देख सकते हैं कि ये जो एरोप्लेन उड़ाने की, रॉकेट उड़ाने की तैयारी में ऐसे लर्नर हमारी कक्षा में हमें दिख जाते हैं। ये तब होता है जब लर्नर्स को हमारी पढ़ाने के तरीके से कोई फीलिंग ना निकले। तो हमें क्या लगता है, हमें कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए ताकि लर्नर्स एंगेज्ड रहे? बताइए चैट बॉक्स में सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज लिखिए। His manner, activities, सभी लोग लिख रहे हैं लर्नर एंगेजमेंट थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज, बड़ी अच्छी बातें हैं। थ्रू क्राफ्ट, चेंज द टॉपिक। संतोष कुमार, यदि हम मुझे इतिहास का एक पन्ना पढ़ाना हो तो फिर मैं टॉपिक बदल दूंगी तो इतिहास का कोई कनेक्शन ना रहे। ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग, वेरी गुड। लर्निंग बाय डूइंग, प्रोबिंग क्वेश्चंस, joyful class, drama, dramatization, role play, discussion, यानी बहुत सारी हमारे पास ऐसी छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज करते हैं, पर हमें पता नहीं कि कौन सी स्ट्रैटेजी को हमें कब यूज करना चाहिए। प्रैक्टिकल्स करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, कभी कभार केबीसी भी खेल लिया करते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें कौन सी स्ट्रैटेजी कब यूज करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और उसका फायदा भी क्या होगा। तो ये देखिए, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु लर्न मोर स्किल्स एंड कंबाइन देम इन क्रिएटिव वेज। आप ये देख सकते हैं, ग्राफ है स्क्रीन पर, जहां पर एक साइड हमने कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है, एक साइड स्किल लेवल दिखाया है, और जहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई है वहां हम देख रहे हैं पूरा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बच्चे को, यदि हमने बच्चे को बोर्डम से नहीं निकाला तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, स्किल बिल्ड करके क्रिएटिवली पढ़ाना है, और वो करते करते एक फ्लो बन जाएगा जिससे अडेप्टिव एक्सपर्टीज आ जाएगी। एक बड़ा अच्छा तरीका है थिंक, पेयर एंड शेयर। तो जैसे अध्यापक एक प्रश्न पूछेगा और 30 सेकंड का समय देगा, बच्चा, लर्नर और उसका पार्टनर दोनों उस प्रश्न को पेयर में थिंक करेंगे, उसका उत्तर क्या हो सकता है, और फिर एक लार्जर ग्रुप के साथ उस प्रश्न का उत्तर शेयर करेंगे। तो ये हो गया थिंक, पेयर और शेयर। ये कब यूज किया जाता है, जब हमें हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना हो पर हम बच्चों का लेवल देखना चाहते हैं, बच्चों की सोच समझना चाहते हैं, तब हम उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स देते हैं
और उन्हें बोलते हैं, ये थिंक पेयर शेयर में पार्टनर करने को बोलते हैं। और इससे हमारे आंसर्स जो आते हैं एक लेवल बना देते हैं जिस पर हम बिल्ड करते हैं। So a joyful learner is always an engaged learner. देखिए दोनों को कितनी खुशी हो रही है, अपने तरीके से ही क्लास में दोनों सीख रही है बच्चियां। As a teacher, when we enter the room or the classroom, we should read the room. क्लास की क्या इच्छाएं हैं? So as you enter or during the class, you should find out. Meet them where they are. Find a very social and emotional connect which is non-judgmental. कभी बच्चों को डूडलिंग करने दें, कभी थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जाके थोड़ी बातचीत की जाए। कभी कभार हमें लग रहा है कि बच्चे बोर हो रहे हैं, तो अपनी एक्टिविटी कट शॉर्ट करके उनके साथ बात करके इंस्ट्रक्शंस क्लियर कर दें। या अगर हमें लग रहा है कि हमने जैसे प्लान किया था वैसे ये एक्टिविटी नहीं चल रही है, तुरंत उसे बदलकर प्लान बी स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी की ओर बढ़ लिया जाए। जैसे ही एक्टिविटी स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगी, चिल्ड्रन विल बी, लर्नर्स विल बी वेरी मोर एंगेज्ड इन आवर क्लासरूम्स। चलिए आगे चलते हैं। While it is impossible to have every student 100% engaged in the classroom at one time, the next best thing we can do is notice disengagement and respond to it quite quickly. अच्छा, यदि आप लोग अंदर अंदर ही बातें करेंगे, स्कूल खुली है बंद है, तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। पर आप मुझसे चैट कर सकते हैं, आप मेरे लिए कुछ भी लिख सकते हैं चैट में, मैं पढ़ने की जरूर कोशिश करूंगी। चैट की भाषा केवल अंग्रेजी रखे तो बेटर होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी तेज से चैट चलती है, मैं दूसरे फॉन्ट पढ़ नहीं पाती। दूसरे फॉन्ट पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है, तब तक चैट चली जाती है। तो fill in dead time. Brief windows that leave just enough time for the students to tune out, after which time can be very difficult to get them back. यानी हमने एक एक्टिविटी करा ली, फिर हम क्लास को सेटल करवाते हैं, तो ये जो सेटलमेंट पीरियड है उसमें क्या हो जाता है, 2-4 बच्चे तो आपके साथ सेटल हो गए, पर बाकी के जो बच्चे हैं वो अपनी खुद की धुन में रहते हैं, अपनी खुद की चीजें करते रहते हैं, तो उनको भी सेटल उसी समय करना पड़ता है। Fill the dead time. Time once lost is gone forever. These blank spaces को आप क्या कर सकते हैं, लोअर ऑर्डर एक्टिविटीज से भर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स अपना अटेंशन बनाए रखें। So these should be quick, easy activities and that should not require too much follow up. बहुत ही कम follow up चाहिए, पर बच्चा अपने आप अपनी जगह बैठ के कुछ ना कुछ करता रहे, ये हमारा उद्देश्य होता है, to fill dead time. अब ये क्या लग रहा है, ये क्या कौन सी चीज हमने बना दी यहाँ पर, बताइए चैट में। कौन सा 7वां अजूबा बना दिया, 8वां अजूबा दुनिया का? पहिए, वेरी गुड शिखा। कनेक्टेड व्हील्स, क्रिटिकल थिंकिंग, वाह क्या बात है। हैंगर्स, वॉल हैंगिंग्स, हुक्स, pegs for thought. तो आप में से जिन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए उनके लिए मैं ताली बजा देती हूँ। ये है हुक्स या पेग्स फॉर थॉट, ये इमेजिनरी चीजें हैं। हम जब क्लास में एंटर करते हैं, क्लास में पहुंचते हैं, पहुंचते ही हम पढ़ाना शुरू नहीं करते, हमें एक हुक एक्टिविटी
देनी पड़ती है। तो ये उसी एक्टिविटी के लिए हुक्स है। सो कैसे हुक होते हैं हमारे पास? हम क्या ये ऐसे हुक तो लेकर नहीं जाते ना क्लास में, पहिए या हुक, ऐसी चीजें तो हम क्लास में लेकर नहीं जाते। तो हम क्या लेकर जाएंगे? नॉलेज फैक्ट्स। हम तो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, मेरी आवाज क्लियर है। तो हम जो अध्यापक हैं तो हम अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? एक डिड यू नो, फन फैक्ट, क्या आपको पता भी है ये चीज हो रही है? So did you know that a single sunflower head can have over 1,000 tiny flowers on it? तो ऐसी चीजें हो गई, या कोई कोटेशन ले जाते हैं, The past is never dead, it's not even past. What does this quote mean? तो बच्चे अपने आप सोचेंगे, कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे। या हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रेरियन स्टेटमेंट ले जा सकते हैं, या कोई अनयूजुअल डिटेल के बारे में बात कर सकते हैं, या कोई सॉन्ग बजाकर या गाकर या गवाकर एक स्टिम्युलस दे सकते हैं। ये हो गए हमारे हुक एक्टिविटीज। तो इंट्रोडक्टरी हुक्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, these could be anything that pique interest, establish relevance, or inspire curiosity. So what are these? An anecdote connected to your subject, a brain teaser, a challenge question. An example from history could also be a very good hook, a multimedia source. तो आप बताइए, आप क्या ले जाओगे क्लास में? अब आज तो शनिवार हो गया, पर आप सभी सोमवार को जब क्लास में जाओगे तो क्या ले जाओगे? हुक। कौन सा हुक ले जाओगे? मल्टीमीडिया। वेल आंसू तो नहीं ले जा पाओगे। Which hook will you carry to class? A challenging question, a brain teaser, fun facts. Absolutely. Now, not because I am telling you to, but it's going to be your introductory hook. And it's going to give you a real different equation with your students. So jokes and cartoons are also very good hooks. Latest news जैसे आप बता रहे हो, ये भी अच्छे हुक होते हैं। किसी ने हिस्ट्री के बारे में भी लिखा था, वो हिस्ट्री के फैक्ट्स बेस्ट हुक होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी उनको यूज करती हूँ। कभी कभार ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं, हमें पता होता है कि हम कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हैं या कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम कुछ एक्स्ट्रा बता सकते हैं। That could also be a great hook. Anything that's going to stimulate learners' critical thinking before beginning a topic is your hook, जिससे anticipation बढ़ेगा। अब आप जोक्स के बारे में, जोक्स तो हर कोई क्रैक कर सकता है, पर ऐसे फालतू जोक्स नहीं क्रैक करने हैं। ऐसे जोक्स क्रैक करने हैं कि जिस टॉपिक पर आप पढ़ाने वाले हैं उसके साथ उन जोक्स का कोई कनेक्ट हो। तो ये देखिए, you have 50 meters of fencing to create a rectangular vegetable patch. तो ये देखिए, तीनों प्रश्न है, तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस और लैंग्वेजेस। अब आप बताइए इन तीन प्रश्नों का कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये तो आप ही मुझे अच्छे से बता पाओगे। चैट पढ़िए, आप लोग, सभी लोग, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो। मैंने 4 सब्जेक्ट को तो कवर कर लिया है, और मुझे बताइए इनमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है?
It's only when you interact in the chat box will we be able to move ahead. ऐसी उंगलियां करने से कुछ नहीं होगा. आपको चैट में अच्छी अच्छी बातें लिखनी होगी. आप तो मेरे एंगेज लर्नर्स हैं. तो कुछ कुछ लिख रहे हैं लोग, थोड़ी सी बातें लिख रहे हैं, पर बहुत सारे लर्नर्स अभी भी डिसंगेज्ड हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि लोग अपनी स्कूल के बारे में या अपना इंट्रोडक्शन देने में व्यस्त है. कोई ताली बजा रहा है, कोई लाइक डिसलाइक कर रहा है. कॉमन फैक्टर कौन सा है? चलिए आगे बढ़ते हैं. ये भी अलग अलग सब्जेक्ट से हैं, इसमें भी कोई कॉमन फैक्टर ढूंढिए. ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है, या फिर पोस्ट स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट्स जो कि आर्ट, पेंटिंग, क्राफ्ट, ये लोग भी ले सकते हैं. बहुत लोगों ने 6 के 6 प्रश्नों का बड़ा सही उत्तर दिया. बहुत लोगों ने मुझे बताया कि ये हुक एक्टिविटीज हैं. पर एक चीज सब में कॉमन है, सारे प्रश्न ओपन एंडेड है, उनका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, ना तो इनमें कोई यस एंड नो आंसर्स हैं. समझे? एंड डेप्थ ऑफ आंसरिंग कैन बी एनीथिंग. एक ही प्रश्न को यदि मैं प्राइमरी में पूछूं या सेकेंडरी में पूछूं, मुझे आंसर्स एज ग्रुप के हिसाब से आएंगे एंड सारे आंसर्स सही होंगे और लेजिटिमेट है, क्योंकि आपने पूछा है, आपको बच्चों के या लर्नर के थॉट्स, ओपिनियंस के बारे में जानना है. तो आपको किसी सही उत्तर की अपेक्षा नहीं है इसमें, पर दे आर ओपन एंडेड आंसर्स. तो बच्चे अपनी सोच से, अपने मत अनुसार आपको उत्तर देंगे. अब ऐसे प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट because they influence how students learn, and the right kind of questions stimulate thinking. Good questions can distinguish mechanical learning from real understanding, and good questions diagnose misconceptions and common errors. So good questions are very, very important. Good questions, आपने जैसे प्रश्न पूछ लिया तो तुरंत उत्तर की अपेक्षा ना रखें. 1 या 2 बार आप प्रश्न पढ़ें, उसके बाद आप 20 सेकंड का पॉज रखें. 20 सेकंड का समय प्रश्न को दिमाग में असिमिलेट करने को चाहिए होता है. तो 20 सेकंड जितना समय दे बच्चे को सोचने के लिए, और फिर उत्तर की अपेक्षा रखें. उत्तर आते ही एक बच्चे पर दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा उत्तर करेगा एंड एंगेजिंग डिस्कशंस विल स्टार्ट. क्योंकि मैं जब बताऊंगी कि मेरा सबसे प्रिय प्राणी एक बिल्ली है या एक तोता है, तो उसके ऊपर कोई बोलेगा तोता नहीं, मोर है, कुत्ता है, शेर है. तो ऐसे ऐसे चल चल के हम उस पर पूरा एक डिस्कशन बना सकते हैं. तो अगर किसी बच्चे के पास उत्तर नहीं है, तो दूसरों के उत्तर के बलबूते पर जो बच्चा चुप रहता है क्लास में, उसका भी व्यू लिया जा सकता है. So make the conversation accessible to those who don't have an instant answer.
हमारी कक्षाओं में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पीछे चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके लिए भी ये तरीका बड़ा अच्छा होता है। जब हम बोले अलाउ टाइम टू थिंक, तो कुड द ग्रुप डिस्कवर समथिंग फॉर द राइट क्वेश्चंस, या आप उनको बताइए, आई सी यू हैव मेड अ गुड कनेक्ट, वी हैव अ वैरायटी ऑफ थ्योरीज हियर। ऐसी बातों से आप उनसे ज्यादा उत्तर निकलवाइए। सी इफ यू कैन एक्सप्लेन हाउ यू केम टू दिस आंसर। इस चीज आपने सम सॉल्व कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, कैसे किया, स्टेप्स बताएं। वोकैबुलरी देखिए, एक साइड पे हम गैस या हाइपोथेसिस या इन्वेस्टिगेट, बिलीव, क्लेम करते हैं, पर अब जब हम अच्छे प्रश्न पूछते हैं तो हम रीजनिंग, जस्टिफिकेशन, रिफ्लेक्ट, प्रोवाइड एविडेंस, डाउट, क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन, इन चीजों पर जोर देते हैं। तो एक होता है रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। ये क्या होता है? एक तरीका होता है जहां पर एक पैसेज या टेक्स्ट होती है और बच्चे दो दो की पेयर में बटे हुए रहते हैं। सारे बच्चे ये टेक्स्ट पढ़ते हैं और बच्चा ए बच्चे बी को प्रश्न पूछेगा, फिर प्रश्न बच्चा बी प्रश्न अपने पार्टनर बच्चे ए को अपने प्रश्न पूछेगा, और उसी तरह ये एक टेक्स्ट का रीडिंग खत्म होगा। तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग। ऐसे ही एक तरीका होता है पार्शियल डिक्टेशन का। आप एक टेक्स्ट दीजिए, बच्चा ए बच्चे बी को डिक्टेट करेगा टेक्स्ट का एक पार्ट, और फिर बच्चा बी बच्चे ए को टेक्स्ट का दूसरा पार्ट डिक्टेट करेगा। दैट इज पार्शियल डिक्टेशन। फिर एक होता है 3 स्टेप इंटरव्यू। हमने जो ये रेसिप्रोकल क्वेश्चनिंग किया, उसी का हम इंटरव्यू स्टेप करते हैं। 3 स्टेप इंटरव्यू जिसे कहते हैं। यू इंटरव्यू योर पार्टनर, then you exchange places, your partner interviews you, and then you share this interview with another pair. Then establish real world relevance. Students might use Pythagorean theorem to build a deck house or garden or equations to start their own business. तो एक ये हमने न्यूज़पेपर से लिया है, न्यूयॉर्कशायर काउंसिल नॉर्थ यॉर्कशायर काउंसिल का एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग है 16 मई का। आप देखिए कैसे रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने से हमें 4 C's मिलने हैं: कनेक्शंस, चैलेंजेस, कॉन्सेप्ट्स एंड चेंजेस। अगर हम 4 C एक्टिविटी बच्चों से करते हैं तो लैंग्वेज टीचर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। Connections, what connections do you draw between yourself or your life and the text? Challenge the ideas and assumptions given in the text. What are the key concepts or the key ideas that you discovered in the text? What changes in attitude or thinking would you suggest for others? तो ये 4 C's जैसे हम करते हैं तो बच्चा टेक्स्ट को थोड़े और फोकस से पढ़ना शुरू करेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो गया स्टूडेंट कोलैबोरेटिव एक्टिविटी और एक्टिव लर्निंग का एक हिस्सा। तो बेनिफिट्स ऑफ स्टूडेंट कोलैबोरेशन, अब बच्चा अकेला तो पढ़ेगा नहीं, एक्टिव लर्निंग करेगा। सो इट इज अ वेरी गुड सोशल कंस्ट्रक्ट। Interacting with content, interacting with the instructor, interacting with students. It helps in self-discovery, promotes diversity, accountability, interdependence, helps students develop higher order thinking skills like creativity, problem solving, metacognition, etc. It helps deepen student understanding as well. So एक होता है deepen student collaboration के लिए buzz groups. तो एक हम buzzer रख देते हैं, टाइम लिमिट देते हैं और बच्चों को अपना डिस्कशन करने के लिए कुछ समय मर्यादा रखते हैं।
उस समय मर्यादा तक फिर बज करते हैं और बच्चे अपना डिस्कशन पूरे बड़े ग्रुप के साथ डिस्कस करते हैं। मिनिमाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर फ्री राइडिंग, मतलब जिसे हम पहले भी बोल चुके हैं, फिल डेड टाइम, वैसे ही ग्रुप्स छोटे रखें ताकि बच्चे अपने आप कुछ करना शुरू ना कर दें। सभी ग्रुप्स पर इक्वल एफर्ट दें। सेल्फ असेसमेंट के लिए समय दें। पेयर असेसमेंट कराएं। एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड आजकल चलन में है। Assign a particular role in each group to each student. Assess individual performance and group performance. ऐसा ना हो कि हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो पूरे ग्रुप को हम पूरे नंबर दे दे। ग्रुप में से जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है उस व्यक्ति विशेष को हम नंबर कम देंगे। Get students moving. अब बच्चा कितने समय तक एक ही जगह में बैठा रहेगा? It's very difficult to sit. So all that pent up energy can be channelized into student learning. Put them on their feet. It's not just about taking a break. It's about, integrating movement into learning. Retain knowledge. Movement helps you stimulate the hippocampus. It's that part of the brain associated with memory. और ये मेमोरी को आप हिलाइए वरना सड़ जाएगी। तो ये होकी पोकी डांस था, पर हमारे पास समय तो नहीं रहेगा आपको नृत्य करवाने के लिए। अगर ये ट्रेनिंग ऑफलाइन होती तो हम जरूर से होकी पोकी करते, पर आप ये होकी पोकी डांस याद रखिए, घर पर जरूर कीजिएगा, या कभी आपको वाटर कूलर मोमेंट की जरूरत लगे तो यू कैन ट्राई इट इन द स्कूल वाटर कूलर मोमेंट, द होकी पोकी डांस. Do the hokey pokey, and that's it all about. So it's all a hokey pokey moment. फिर होती है headlines जो कि हम न्यूज़पेपर की देखते हैं. They play a very important role in keeping the students engaged. बहुत सारी headlines आजकल आती है. इन headlines को यदि हम बच्चों में बांट दें ग्रुप्स में और उनको बोले कि इन headlines को क्या करें. So these are headlines on fractions. Counting is fun. अब छोटी क्लास के बच्चों को हम ये भी बोल सकते हैं कि counting is fun, तो बताओ कैसे बच्चा काउंटिंग करोगे. तो एक बच्चे ने ये कविता बना दी है. 1 2 3 let's see. ABCs are my friends. We sing and learn together. Colors everywhere. Make a rainbow with me. एक दूसरे बच्चे को जब हमने हेडलाइन बनाने को कहा तो हमारे पास ऐसी वाली हेडलाइन आई. सब्जेक्ट वर्ब ड्यूओस मेक सेंटेंसेस शाइन. सेल्स टाइनी टाइटन्स ऑफ लाइफ. एंशिएंट इजिप्ट ममीज, पिरामिड्स एंड pharaohs. ठीक है. अब हम चाहे कितना भी सोचे हम ऐसी हेडलाइंस नहीं बना पाएंगे, बट ये देखिए छोटे छोटे बच्चों ने कैसी प्यारी प्यारी हेडलाइंस बनाई है. रोल प्ले, ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है किसी भी मुश्किल कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए. हम फायर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलनेस, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, हर चीज के बारे में बच्चों से बातें कर पाते हैं. फिर हम केमिकल रिएक्टेंट्स की भी बातें कर पाते हैं रोल प्ले द्वारा. हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर प्लस एनर्जी. दीज आर द रिएक्टेंट्स, दीज आर द प्रोडक्ट्स. हम स्कैफोल्डिंग कर सकते हैं चेक पॉइंट्स के साथ. तो स्कैफोल्डिंग क्या हो जाता है, जो कि हमारी वाइगोत्स्की की थियोरी है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, उसके बीच की जो एक जगह है उसे हम स्कैफोल्डिंग के नाम से जानते हैं. स्कैफोल्डिंग से हम बच्चे को मदद करते हैं
स्कैफोल्डिंग होती क्या है? मचान। तो मचान जब हम बांधते हैं तो हम उतनी ही मचान बांधते हैं कि बच्चा आगे बढ़े। जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, एक अध्यापक मचान उतारता जाता है। जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, एक शिक्षक मचान निकालता जाता है। So these are scaffoldings with breaking the concepts into more achievable parts. You have checkpoints of instruction, reorienting students and reminding them of what needs to be done next, and a periodic call to attention when students are liable to go off track. अब देखिए, शिक्षक जब मचान देता है तो हर बार हर बच्चे के साथ नहीं होगा। जिस बच्चे को जितनी जरूरत है उतनी ही मचान बांधेगा। तो वैसे हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप देख सकते हैं। इन्फोग्राफिक, सेंसरी एक्टिविटीज, इंटरैक्टिव्स, हर एक एक्टिविटी का स्कैफोल्डिंग बना हुआ है। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं जिनमें आपको और भी ज्यादा आइडियाज मिलेंगे। एक होता है प्राइमरी क्लासेस में हम फ्लैश कार्ड्स दिखाते हैं, या तो फिर सेकेंडरी क्लासेस में गेम शो करवाते हैं। या तो हम गेम शो करते हैं, या तो फिर हम केबीसी जैसे क्विज रखते हैं, या कोई गेमिफिकेशन प्रोसेसेस द्वारा लर्नर एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं। फिर होता है एक पॉज एंड रिफ्लेक्ट। Students to make progress have to go beyond their current knowledge, skills and mindset. और उनको आगे की सोचना है। Negative mindsets are a serious block to effortless learning. We as teachers have to think about ways of challenging these negative mindsets and blocks and instilling positive learning environments in the students. Invent creative solutions. हमने तो प्रॉब्लम दे दिया, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चा निकालेगा। कितना क्रिएटिव है वो बच्चे की क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग पर डिपेंड करता है। तो ये फ्लोरिडा से हमें एग्जाम्पल एक मिला है। किंडरगार्टनर्स क्रिएट इमेज बेस्ड मूवीज ऑन रिसाइकलिंग एंड इंसेक्ट्स। फर्स्ट graders develop PPTs for My Time to Teach projects to share with the class. एंड ये क्या करता है? कॉग्निशन मतलब दिमाग को बढ़ावा देता है। इसके लिए हमें स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी को अपनाना जरूरी है। तो 6th ग्रेड का एक शिक्षक अपने बच्चों को कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड प्लॉट इन अ साइंस फिक्शन नॉवेल के बारे में बताता है। एंड students then move on to write fan fiction, podcast, soundtrack, and they use Audacity, which is their authentic work. This develops creativity and critical thinking abilities in the students. और बच्चे काफी बार हमें ये बोलते हैं, we need a break. Give them that break. 1 मिनट आप कम पढ़ाओगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। बच्चों को एंगेज रखिए, बट ब्रेक दीजिए और 1 मिनट के बाद तुरंत ही पढ़ाना शुरू करें। सो ब्रेन ब्रेक्स आर नेसेसरी। तो या तो आप उन्हें बोलिए चलिए 5 बार जंप लगाइए और बैठ जाइए, स्टैंड अप, टेक 1.5 स्टेप एंड सिट डाउन, और call out a trait and anyone who has that trait. So if you say all students belonging to the greenhouse stand up and interchange places. That's how you will automatically give them a brain break. Elevator pitch. So हम लोग एक आइडिया देते हैं, एक कितना समय लगता है एक एलिवेटर में बॉटम फ्लोर से टॉप फ्लोर जाने के लिए? 30 सेकेंड। तो बच्चे को हम एलिवेटर में है ऐसा सोच कर भेजते हैं एक आइडिया के साथ, और जब उसका एलिवेटर टॉप मोस्ट फ्लोर पे खुलता है तो बच्चा आइडिया लेकर बाहर आता है। That's an elevator pitch, outlining an idea। 30 सेकेंड का समय होता है।
Draw analogies, pick two unrelated things and ask students how they are alike or how they are connected. So a museum like a snowstorm. So here encourage creativity to look for similarities. अब बताइए इस पिक्चर में आपने क्या देखा? ये पिक्चर आपको किस चीज की कहानी बता रहा है? इस दृश्य से आपको कौन सी कहानी की बात याद आती है या आपको कौन सी कहानी से इस चित्र को जोड़ना है या इस दृश्य में आपको क्या दिख रहा है? मुझे तो इसमें पेंगुइन्स दिख रहे हैं, ब्लैक पेंगुइन्स एंड व्हाइट पेंगुइन्स जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और उनका एक टीचर है जो उन्हें मॉनिटर कर रहा है। या तो मैं ऐसा भी सोच सकती हूँ कि मेरे सारे पेंगुइन्स फील्ड ट्रिप पर गए हैं। कुछ छोटे पेंगुइन्स हैं पीछे के टीचर के साथ, आगे बड़े पेंगुइन्स हैं और वहां खोए हुए दूसरी स्कूल के पेंगुइन्स हैं। या तो मैंने एक टीचर होकर बच्चों को बता दिया इस दृश्य में दिखने वाले पेंगुइन्स को गिनकर बताएं, या तो फिर ये पेंगुइन जहाँ गए हैं उस इलाके के फिजिकल फीचर्स के बारे में दृष्टांत दें। इन पेंगुइन्स और अपने अध्यापक के बीच जो बातें हो रही है उन्हें एक डायरी का एक पन्ना समझकर लिखे। पेंगुइन्स के अंतर्गत बातें, अंदरूनी बातों को एक ईमेल द्वारा अपने मित्र को पत्र में लिखें। ये क्या हो गया? इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज। हमने मैथ, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज सभी चीज को कनेक्ट करके एक चित्र को बना दिया। चित्र कहाँ का है? पहाड़ी इलाकों का है। इससे बातें अलग हो जाती हैं, स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ती है। स्टोरी टेलिंग भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी है। आपने ये स्माइलीज बना दी अलग अलग और बच्चों, हर एक बच्चे के हाथ में एक स्माइली बना दिया। अब ये छोटा भीम के फेसेस हैं तो टुनटुन आंटी और छोटा भीम की स्टोरी पकड़कर बच्चों से और स्टोरीज बन रही है। ये राजा और राजकुमारी की और परी की कहानियां हैं। तो एक राजा की राजकुमारी 2 दिन से बीमार बेचारी, 3 साधु सुनकर आए, 4 दवा की शीशी लाए, 5 मिनट में गर्म की, 6 6 घंटा बाद में पी, 7वें दिन आंखें खोली, 8वें दिन राजा से बोली, 9वें दिन पाठशाला आई, 10 अशर्फी दान कराई। ये क्या हो गया? 10 दिन, 1 से 10 की गिनती, 10 दिन में क्या क्या हुआ, हम सारी चीजों को पिक्चर द्वारा दिखा रहे हैं, चित्र द्वारा दिखा रहे हैं, कविता का रचना लेखन करवा रहे हैं। तो अब ये थिंकिंग रूटीन्स बनने चाहिए। हर दिन एक नया हुक क्लास में जाना चाहिए और थिंकिंग रूटीन्स बनवाने चाहिए। Core thinking routines, introducing and exploring ideas, digging deeper, synthesizing and organizing ideas, investigating objects, perspective taking, consider controversies, dilemmas, generating possibilities, analogies, exploring art and images, global thinking. I used to think that something was wrong, but now I think the core concept is clear. These are many of the thinking strategies that are listed here. Depending on the subject you teach, you may choose to note down the thinking strategies.
So what do we say in a thinking strategy? You deliberate, you convert, and then you move into seamless integration. एक इनिशियल फेज होता है जहां हम एक रूटीन सेट करते हैं, उस रूटीन को रीइटरेट करते रहते हैं इन द डेवलपिंग फेज एंड एडवांस फेज में वो रूटीन हमारा नेचर बन जाता है. सीमलेस इंटीग्रेशन. फिर हमारे पास बिहेवियर पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर्स भी होते हैं. हम अमुक प्रकार से बिहेव करते हैं, कुछ तौर तरीकों से हम पेश आते हैं, और ये भी हमारे बिहेवियर अंदर के पैसिव टूल्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं. Shake things up. Predictability is safe, but it can get boring. So mix up staple teaching strategies with a novel activity from time to time. हर दिन यदि आप क्लास में हुक ले जाओगे तो एक रूटीन बन जाएगा. कुछ समय बाद बच्चे, जब आप हुक नहीं ले जाओगे तो बच्चे पूछेंगे, सर या मैम आज का हुक कहाँ है? तो मेरे पहिए वाले हुक्स को याद रखिएगा. और इसी के साथ पाटलिपुत्र सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स को मेरे हार्दिक धन्यवाद. साथ ही में राजीव रंजन सिन्हा सर और इंशा रहमान मैम को भी दिल से धन्यवाद देती हूँ. आप सभी आज के एंथुसियास्टिक लर्नर्स को मेरे प्रणाम करती हूँ, और हमारी बातचीत को बनाए रखने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी सीबीएसई श्री तरुण कुमार सर को भी प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने हमारे बीच इस बातचीत का खूबसूरत सा जरिया बनाए रखा. आप सभी को खूब खूब धन्यवाद. शुभ दीपावली, हैप्पी छठ पूजा, और बाद में हम मिलते रहेंगे. इसी के साथ आप सभी को सादर नमन. यदि आपके कोई प्रश्न हो, यदि आपके कोई कमेंट हो तो बेफिक्र होकर चैट बॉक्स में लिखें. मैं उनको पूरी तरह से फुलफिल करने की कोशिश जरूर करूंगी, जैसे मैं हर बार करती ही हूँ. यदि आपको लगता है कि कुछ और कर सकते हैं इस सेशन को बेहतरीन बनाने के लिए, तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं. हम हर वक्त आप ही के सुझावों से इम्प्रूव करते हैं. आपको यह सेशन कैसा लगा, इस बारे में भी आप हमें फीडबैक दे सकते हैं. आज आपने क्या सीखा? तो आप लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, मैं वही पढ़ रही थी. I am truly humbled and honored by all the wonderful comments coming my way. मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप मेरी तारीफ के पुल बांधते हैं. खूब खूब धन्यवाद आपका.
इस सेशन से आप अपने क्लासरूम्स के लिए बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर होकर जाएं और मुझे आप सभी के प्रधानाचार्यों द्वारा एक कमेंट आनी चाहिए कि आपने अपने पढ़ाने के तरीके को, पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज को बदलकर कुछ नया किया कक्षाओं में, ताकि आपके बच्चे ज्यादा एंगेज्ड रहे। तो चलिए, समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और मैं देख रही हूँ कि आप मेरी तारीफों के पुल बांधते हुए सेशन से जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जो इस वेबिनार को आज होस्ट कर रहे हैं पाटलिपुत्र सहोदय से, आपको भी बैकएंड में हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ दीपावली और नूतन वर्ष की। साथ ही में आप सभी को छठ पूजा की भी खूब खूब हार्दिक बधाइयां देती हूँ। और अब पाटलिपुत्र सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स के साथ श्री राजीव रंजन सिन्हा सर एवं इंशा रहमान मैम को भी धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ इस मंच पर बुलाया और एक अच्छा सेशन आप सभी इंटरैक्टिव एजुकेटर्स के साथ लेने की एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है। और हमारे बीच की एक कड़ी जिसे हम हमेशा ही याद करते हैं, जिनके जरिए हम हमेशा मिलते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी सीबीएसई श्री तरुण कुमार सर, जिन्होंने पटना में रहकर हमारी एक मुलाकात करवाई और हम तब से जुड़े हुए हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो चलिए, दिवाली के बाद फिर मिलेंगे एक अच्छे नए टॉपिक को लेकर, एक नई शुरुआत करते हुए। धन्यवाद।